और आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली के विज्ञान भवन, जहां पर इलेक्शन कमिश्नर इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनते हैं। Voters who are 100 plus, and we have reached everybody's house as a mark of respect towards them. And you will be happy to know, and it's a motivational thing for our young voters. There are voters who have voted in all elections since 1950, all, including the local body elections. And there are 1,184, and they come to, many of them come to the booth. They say, we do not need the Form 12D, we'll come to the booth. So they are really the source of inspiration for all of us. And हमने उनको सबके घर में एक चिट्ठी भेज के अपने BLO साहब के थ्रू या अफसर्स के थ्रू सबको सम्मानित भी किया और आभार भी प्रकट किया कि आप ही की प्रेरणा से बाकी लोग भी आगे बढ़ के वोट दे सकें। Friends, there are 1.2 lakh voters who would be 80 plus in Himachal, and 1.86 lakh voters would be first time voters between 18 years and 19 years. And these are the ones with whom we are very, very focused way we are connecting with all of them by organizing large number of events in their colleges and institutions. As you know, the amendment in section 14 enabled us to register voters in the 4 qualifying dates. तो आप इसको अगर मैं ऐसे समझाऊं कि जो लोग 1 जनवरी अगर ये अमेंडमेंट ना होता तो 1 जनवरी 22 को जो भी लोग 18 इयर्स के हो गए वही वोटर बन पाते। उसके बाद में 1 जनवरी 23 की क्वालिफाइंग डेट से वोटर बनते। बट बिकॉज ऑफ दिस चेंज in Himachal alone, those who were born after 1st January 22 but before October 22, 43,173 additional voters have been enrolled and they would be able to participate in this festival. This is only because of the amendment which happened, and you can extrapolate it and see because of these 4 changes. And now what we have done and what will happen in the SSR now, even if somebody is 17 and is going to be 18 next year till October 2023, in the new SSR which is coming in the entire country, they can apply in advance. And we take the responsibility of keeping that application with us and making him or her the voter the date on his or her birthday. And our officers will send them a kit, a welcome kit for the new voters, which will contain the EPIC card, which will contain how to vote, which will contain about how the EVMs function, which will contain the the website links to where they can educate themselves about the election process. We, through you, call upon all voters in Himachal to come out and vote. Their participation should take inspiration from the elders who are there in that state, and our fervent appeal that all stakeholders maintain COVID appropriate behavior. Friends, आयोग ने हमेशा मीडिया को चुनावी प्रक्रिया में अपना सबसे बड़ा एलाई माना है. It's a kind of a natural ally. That is why first time we come here and announce. There is nobody who comes to know of this. मैं दोहराना चाहूँगा कि आपके माध्यम से सभी वोटर्स को एक बार पुनः अपील करेंगे. And the exact schedule for the state would be as it's being shown on your slides. Notification dates दे दो. If it is visible, the date for the Gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November. And date of counting 8th December. And the entire process is completed by 10th of December. So again, through you with the appeal to all the voters on behalf of all of us to come and vote in the state of Himachal, I hand over to Shefali ji back. Thank you.
हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने अभी अभी इस डेट का ऐलान किया है। हिमाचल प्रदेश में एक चरण में ही चुनाव होगा और 12 नवंबर को वोटिंग होगी हिमाचल प्रदेश में। इस साल के अंत में 2 प्रदेशों में चुनाव होने हैं। हिमाचल प्रदेश उनमें से एक है, दूसरा गुजरात। हिमाचल प्रदेश में एक चरण में चुनाव कराने का ऐलान किया है इलेक्शन कमीशन ने और 12 नवंबर होगी वोटिंग की तारीख। एक ही चरण में यहां पर इलेक्शन हो जाएंगे, चुनाव पूरा हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। और इसके बाद 10 दिसंबर को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। एक महीने के अंदर नतीजे आ जाएंगे। 8 दिसंबर को, माफ कीजिएगा, हिमाचल में 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। ये ऐलान इस वक्त किया है चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 12 नवंबर को वोटिंग, एक ही चरण में चुनाव होंगे हिमाचल प्रदेश में और उसके बाद 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे हिमाचल प्रदेश चुनाव के। अब से लगभग एक महीने का समय बाकी रह गया है। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को वोटिंग होगी और उसके बाद 8 दिसंबर तक नतीजों का ऐलान भी हो जाएगा। चुनाव आयोग की आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 प्रदेशों के चुनाव डेट्स की उम्मीद की जा रही थी, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। हिमाचल प्रदेश के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है चुनाव आयोग ने। 12 नवंबर को यहां वोटिंग होगी, एक ही चरण में चुनाव होंगे और इसके नतीजे 8 दिसंबर को आ जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। दिल्ली के विज्ञान भवन में इस वक्त चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद वहां मौजूद हैं और हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में चुनाव होंगे, एक ही चरण में चुनाव किए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त करते हुए और कुछ सवाल भी ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट जो इस वक्त आ रही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो ये है कि हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को चुनाव होंगे, जिनके नतीजे 8 दिसंबर तक आ जाएंगे। एक ही चरण में हिमाचल प्रदेश में वोटिंग होगी और मतगणना के लिए 8 दिसंबर की तारीख का ऐलान किया है आज चुनाव आयोग ने। इस वक्त विधानसभा चुनाव जो हिमाचल प्रदेश में होने हैं साल के अंत में, उनकी चुनाव तारीख का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। 12 नवंबर को वोटिंग होगी हिमाचल प्रदेश में और 8 दिसंबर तक इस चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। तमाम इस वक्त जो अपडेट आई है सबसे पहले जी न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे मेरे सहयोगी मेरे साथ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से लाइव जुड़ रहे हैं। ब्रह्म, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। हिमाचल प्रदेश में चुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो गया है 12 नवंबर को। मुख्य बात यह है कि एक ही चरण में चुनाव निपटा दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पिछले बार भी एक चरण में ही हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे, इस बार भी चुनाव आयोग ने कहा है कि 12 नवंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। यानी एक ही फेज में आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आपको बता दें कि इस बार चुनाव आयोग ने कहा है कि 80 प्लस जो वोटर होंगे, यानी जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे ज़्यादा होगी, वो घर से वोटिंग कर सकेंगे, घर से अपना वोट दे सकेंगे। ये सुविधा भी चुनाव आयोग ने दी है। और भी कई महत्वपूर्ण जो है कदम इस बार चुनाव आयोग ने उठाए हैं। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में इस बार जो है वोटर की तादाद है 1,56,000 जो है नए मतदाता जुड़े हैं इस बार और 56 लाख कुल वोटर हैं। और इसमें जो 1,56,000 नए वोटर जोड़े गए हैं, इनकी उम्र 18 से 19 साल है जो नए वोटर जुड़े हैं। तो हिमाचल प्रदेश के लिए अभी तारीखों का ऐलान हुआ है। जिस तरह से जी न्यूज़ अपने दर्शकों को पहले भी बता रहा था कि ऐसा हो सकता है कि अभी चुनाव आयोग
सिर्फ एक ही राज्य के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान करे। हालांकि अभी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस विज्ञान भवन में चल रही है, लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के पोल की तारीख का ऐलान किया गया है और वो है 12 नवंबर और वोटों की गिनती है वो दिसंबर में 8 दिसंबर। जी। और राजनीतिक दलों के लिए ब्रह्म यहाँ से हलचल और ज्यादा तेज हो जाएगी क्योंकि अब एक महीने से भी कम का समय बचा है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव 12 नवंबर को होने हैं, आज 14 अक्टूबर हो गई है। तो अब जल्द जो तमाम उनकी वादे हैं, उनके मैनिफेस्टो हैं, वो लोगों के सामने आने शुरू हो जाएंगे। मतगणना उसके लिए 8 दिसंबर की तारीख तय हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 8 दिसंबर को वोटों की गिनती शुरू होगी और मैं आपको ये भी बता दूं कि चुनाव आयोग ने अपने हिसाब से ये मानकर चलता है कि लगभग 25 दिन उसको तैयारी के लिए चाहिए होते हैं, यानी 25 दिन पहले वो तारीखों का ऐलान करता है। हिमाचल प्रदेश के लिए आज तारीखों का ऐलान हुआ है, लिहाजा जो आदर्श आचार संहिता होती है वो भी कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट, वो भी आज से लागू हो गया है। लिहाजा ना तो अब कोई वहाँ पर घोषणाएँ हो सकेंगी इस तरह सरकार की तरफ से, ना ही कोई शिलान्यास, ना ही कोई उद्घाटन कार्यक्रम, क्योंकि आदर्श आचार संहिता आज से लागू हो जाएगी हिमाचल प्रदेश के लिए। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की जो सीटें हैं उन पर सभी पर वोटिंग जो है 12 नवंबर को होनी है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात आप ये देखिए कि जब गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होगा और उसके वोटों की गिनती जो होगी, क्या वो भी इसी तारीख को रखी जाएगी जो है हिमाचल प्रदेश की जो तारीख है, क्योंकि यदि उसके लिए गुजरात के लिए वही तारीख रखी जाती है तो फिर जो है हिमाचल वालों के लिए परिणाम का इंतजार लगभग 20 से 25 दिन करना होगा, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगले सप्ताह जो है गुजरात के लिए तारीखों का ऐलान होगा और जो पोलिंग की डेट है, जो पोलिंग की डेट के अलावा जो वोटों की गिनती की डेट है वो भी शायद 8 दिसंबर ही रखी जाए, इस बात की संभावना है। हालांकि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, अभी सारी जानकारी और धीरे धीरे सामने आएगी। जी बिल्कुल, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त भी चल रही है और शिमला से मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तो इस वक्त अमित, देखिए सबसे बड़ी खबर आ गई है हिमाचल प्रदेश निवासियों के लिए कि 12 नवंबर को उनके प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग होनी है। जिस तरह से पिछले कुछ महीनों से ही आप लगा लीजिए गहमा गहमी चल रही थी, प्रधानमंत्री के भी दौरे हुए, उससे ये अंदाजा लगाया जा ही रहा था कि जल्द ही वोटिंग की डेट भी सामने आ जाएगी। बिल्कुल, देखिए 17 अक्टूबर को जो है वो गजट नोटिफिकेशन है वो जो है वो जारी कर दी जाएगा। 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक नामांकन लेना, सिक्योरिटी जो है नामांकन करने के बाद सिक्योरिटी और उसके बाद जो है नामांकन वापस लेने वाली प्रक्रिया जो है वो निपट जाएगी। उसके बाद 12 नवंबर को जो है पोलिंग होगी और 8 दिसंबर को जो है वो काउंटिंग होगी। और ये चीज़ आपको बता दूं कि शिमला की जो ठंड है उसमें गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये राजनीतिक जो हलचल अब शुरू होगी ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। सभी पार्टियां, और इस बार नया प्लेयर है आम आदमी पार्टी। हालांकि जो लोगों का कहना है कि जो बड़ी कांटे की टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस की है, लेकिन बीजेपी का जो पलड़ा इस समय जो है वो काफी भारी लोगों को लगता है, जिन लोगों से बात की है। और कुछ लोगों को लगता है कि कांग्रेस काफी चीजें लेके उतरेगी और ये पहली बार होगा। ये चुनाव इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि यहाँ पर अक्सर जो सरकार है वो बदलती रही है। क्या इस बार जो सरकार रिपीट करेगी, क्या ये नया प्लेयर जो है ये किसकी वोटें काटेगा या किसको जो है इससे मदद मिलेगी, ये देखना जरूरी है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का पहला स्ट्रोक जो होता है वो दमदार होता है, लेकिन दूसरे स्ट्रोक में वो सबको धो देते हैं। हमने दिल्ली में भी देखा, पंजाब में भी देखा, अब वो हिमाचल में उतर आए हैं। लेकिन अभी तक इतनी सारी चीजें अरविंद केजरीवाल के हक में नहीं दिखाई दे रही। लेकिन जो भाजपा लगातार जो है अपनी चीजों को सामने रखते आ रही है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यहाँ पर विजिट हुई थी और जो 3650 करोड़ रुपए की जो चीजें जो है वो हिमाचल को मिली है, उसमें एम्स भी है और भी कई नई योजनाएं उनको जो मिली है, उससे देखना है कि कितना फर्क पड़ेगा। और इधर कांग्रेस भी काफी जोर लगा रही है। मैं आपको बता दूं कांग्रेस के पास भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो सामने खड़ी हो रही है। आज प्रियंका भी जो है वो सोलन में जो है वो अपनी रैली कर रही है। कांग्रेस ये मानती है कि ये जो अपना पूरा ट्रेंड है इसको वो वैसे ही बरकरार रखेंगे जो हिमाचल में। लेकिन बीजेपी कहती है कि परिवर्तन आएगा, दोबारा वैसी सरकार आएगी और पहली बार ऐसा होगा। तो लेकिन देखना ये कि अरविंद केजरीवाल कैसा रोल प्ले करते हैं। बीजेपी और कांग्रेस का लगता है कि जोर है पूरा हिमाचल प्रदेश पर, अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं अपनी जान ज्यादा गुजरात में फूंक रहे हैं। लेकिन ब्रह्म प्रकाश दुबे के पास एक बार फिर से जाना चाहूंगी। ब्रह्म, ये भी सच है कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीख नवंबर के पहले 2 हफ्ते में ही आने वाली थी, क्योंकि वहां पर बाद में ठंड ज्यादा बढ़ जाएगी और चुनाव के लिए वो जो कंडीशंस है वेदर के हिसाब से वो ज्यादा ठीक नहीं रहती। इस वजह का ये कोई प्रेशर भी था कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पे कि जल्द से जल्द अनाउंस की जाए डेट्स?
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मौसम एक बड़ी वजह है इसके पीछे, क्योंकि 15 नवंबर के बाद ज़्यादा ठंड वहाँ पर पड़ती है और इसके बाद अगर दिसंबर के महीने में आप देखें तो मौसम ज़्यादा ख़राब हो जाता है हिमाचल प्रदेश में। लिहाजा वोटिंग नवंबर में रखी गई है। हालांकि काउंटिंग बहुत लेट है। आपको बताएं कि लोगों को रिजल्ट लगभग 26 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, उम्मीदवारों को और हिमाचल प्रदेश की जनता को, कि आखिर उनके प्रदेश में वोटिंग का क्या परिणाम रहा है। तो ये बड़ा लंबा गैप है। हालांकि पिछली बार भी इतना ही लंबा गैप रखा गया था, चूंकि गुजरात में भी विधानसभा चुनाव हुए थे और उसके बाद काउंटिंग दोनों राज्यों की एक ही तारीख को हुई थी। इस बार भी लग रहा है कि चुनाव आयोग ने इसी तरह का मन बनाया है, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए कि वोटिंग के बाद 26 दिनों का लंबा गैप है काउंटिंग के लिए, तो ये मानकर चलिए आपकी इस बात की पूरी संभावना है कि गुजरात में पोलिंग होने के बाद काउंटिंग एक ही तारीख पर होगी। इसके पीछे देखिए एक वजह यह भी होती है, क्योंकि अगर एक राज्य में विधानसभा चुनाव के परिणाम पहले आते हैं तो दूसरे राज्य के यदि हाल ही में चुनाव हैं तो वो प्रभावित होने की संभावना ज़्यादा रहती है। लिहाजा इस बात को लेकर भी शायद चुनाव आयोग चलेगा और लिहाजा काउंटिंग एक ही दिन होगी, इस बात की पूरी संभावना है। हालांकि पहले ये माना जा रहा था कि दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का एक साथ ऐलान होगा, लेकिन आज सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लिए हुए। मैं थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा जो चुनाव आयोग ने दी है कि 27,80,208 जो है मेल वोटर हैं जो इस बार वोट करेंगे हिमाचल में। इसके अलावा 27,27,016 महिला वोटर हैं जो इस बार हिमाचल प्रदेश में वोट करेंगी। और आपको ये बता दें 1,86,681 जो हैं वो नए वोटर हैं जो इस बार मतदाता सूची में जुड़े हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग ने कहा है मैदान में एक एक वोट काउंट करता है। ब्रह्म, मैं एक बार रविंद्र के पास भी जाना चाहूंगी जो बीजेपी ऑफिस से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रविंद्र, भले ही आज इलेक्शन की तारीख की अनाउंसमेंट हुई हो, ऐलान किया हो चुनाव आयोग ने, लेकिन कहीं ना कहीं तैयारी काफी लंबे समय से चल रही थी और खास तौर पर बीजेपी के लिए ये दोनों ही राज्य बेहद महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश असेंबली का इस वक्त हम एक ग्राफिक दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। 43 सीट है बीजेपी के हाथ में, कांग्रेस की 22 और अन्य की 3। और यहां पर अब क्या थर्ड प्लेयर, जिसका जिक्र अब से कुछ देर पहले अमित भारद्वाज कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल बनकर आ सकते हैं? कोई फर्क हो सकता है बीजेपी के लिए, कोई खतरा? देखिए, पहाड़ हो या फिर समुद्र हो, गोवा हो या फिर गुजरात हो या दूसरे आपने उत्तराखंड देखा हो, इसी तरह के कहीं ना कहीं पोस्टरिंग होता है, एक बड़ा हाइप होता है आम आदमी पार्टी को लेकर। लेकिन अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल की पूरी कोशिश है कि 4 राज्यों में उनको या तो सरकार जिसे बन गई है 2 राज्यों में, और 2 राज्यों में उनको 6% से ज़्यादा वोट हो, जिससे कि वो नेशनल पार्टी की होड़ में या नेशनल पार्टी बन सके। उनका पूरा जोर इसी पर है और अभी फोकस उन्होंने गुजरात पर किया है, जबकि इसके पहले वो लगातार वो चाहे मनीष सिसोदिया या दूसरे नेता हिमाचल प्रदेश जा रहे थे। लेकिन उनको लगता है कि हिमाचल प्रदेश से ज़्यादा बेहतर स्थिति गुजरात में हो सकता है, जहाँ पर वो 6% तक वोट ला सकते हैं। इसलिए अभी फोकस किए हुए हैं गुजरात पर। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है या फिर उत्तराखंड की बात है, ये 2 ऐसे प्रदेश रहे हैं जहाँ पर हर बार सरकारें बदलती रही है। 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। लेकिन पिछले 8 साल में देखिए, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं और बीजेपी की कमान संभाले हैं, तब से कई परंपराएं टूटी है। और ये लगातार उत्तराखंड में भी देखें तो बीजेपी की पूरी कोशिश है कि हिमाचल प्रदेश में फिर से उनकी सरकार रिपीट हो। और इसलिए पिछले कुछ हफ्ते में आपने देखा कि प्रधानमंत्री के लगातार वहाँ पर दौरे हो रहे थे, शिलान्यास हो रहे थे। और एक और जो कार्यक्रम अभी फिलहाल सबके सामने है वो 16 तारीख और 18 तारीख को वो धर्मशाला और सोलन में जाने वाले हैं, जिसकी तैयारी धर्मशाला में खुद अनुराग ठाकुर कर रहे हैं वहां पर रहकर। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की पूरी कोशिश सरकार में फिर से वापसी करे, सरकार सत्ता पर बरकरार रहे। हालांकि आम आदमी पार्टी जो भी वोट लाएगी कांग्रेस का वोट शेयर ही उठाएगी, जबकि सत्ता के प्रमुख दावेदारों में न गुजरात में है और न ही हिमाचल प्रदेश में।